Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. In our previous videos, we covered up cardinal utility. Today in this video, we are going to cover up the topics of ordinal utility, or that is consumer's equilibrium or indifference curve analysis. When I'm talking about ordinal utility, as I told you in my previous class, that it is based on ranking. That is ranking choices by order of the preferences. That means whatever the preference the consumer is having, the ranking means the order of ranking will be according to the choice of the consumer. So in we can say that in ordinal utility, what the consumer does, he only ranks choices in terms of preferences, but means we do not have any exact numerical figures for utility as we had in the case of cardinal utility. We can take the example, for example, we prefer a BMW car to a Nissan car, but we can't say that how much we are preferring, by how much means we cannot say the exact figure out, means we can only rank that I'm preferring BMW to Nissan. Then the concept of ordinal utility was given by John Hicks and Roy Allen in 1934. They first produced a paper which mentioned ordinal utility. Then in the term of ordinal utility, we will discuss about the indifference curve. When I'm talking about indifference curve analysis, it is based on the concept of ordinal measurement of utility. यानी कि ये ordinal utility measurement की concept base होता है, that is the ranking method. और and according to this concept means the utility is also ranked as, means utility high या low में रैंक की जाती है. ये कभी भी यूनिट्स के टर्म में नहीं एक्सप्रेस की जाती है, जैसे कि 1, 2, 3 में नहीं एक्सप्रेस की जाती है. नाउ देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस और इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. पहले हम इन अजम्पशंस को देख लेते हैं. तो मीन्स दिस आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज बेस्ड ऑन दैट मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. इसको मीन्स आईसी, इसके लिए जो अजम्पशंस है वो पहला ये है कि जो कंज्यूमर का मनी इनकम है वो गिवन होता है और वो चेंज नहीं होता है. द सेकेंड अजम्पशन इज कि वो जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को ऐसे गुड्स पे मींस स्पेंड करता है जो कि दूसरे गुड्स को मींस जो दूसरे गुड्स से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल या ऑरेंज. एप्पल को हम ऑरेंज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. थर्ड असम्पशन इज कि जो कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस होते हैं फॉर द मींस इन टू गुड्स के लिए वो वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स की जो डिजायर इंटेंसिटी है डिजायर की फॉर मींस फॉर अ particular commodity, whatever the intensity of desire the consumer is having, means कि would increase when he has less of it. means कि उसके पास जब वो less होता है तो वो increase करता है. likewise हम ये कह सकते हैं कि consumer के लिए किसी भी commodity की जो desire होती है, जब उस consumer के पास वो commodity ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो desire होती है वो कम हो जाती है. then the fourth thing is कि more of a good always gives more satisfaction to the consumer. यानी means कि more of a इसको हम क्या कहते हैं, monotonic preference for a good. और यहाँ पे जो हमारा consumer होता है वो rational या logical being होता है, वो हमेशा अपने satisfaction की maximization की बात सोचता है, या he always maximizes his satisfaction. Now अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस सेट एंड व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. जब मैं इंडिफरेंस सेट की बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक ऐसा सेट होता है, एक कॉम्बिनेशंस का सेट होता है जो कि टू गुड्स के बीच में बनाया जाता है. मींस कि जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कॉम्बिनेशन देता है टू गुड्स का, ताकि सो दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट ऑल अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस इन हिज डिफरेंस सेट. अब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की. तो जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है इंडिफरेंस सेट का, जो अभी वी विल सी द एग्जांपल आल्सो. मींस की ऑफ अ कंज्यूमर, ये क्या शो करता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है
कि जिसमें कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को हर लेवल पे मिलता है। यहाँ पे हमने एप्पल और ऑरेंजेस को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो सेट बनाया है वो मैंने कॉम्बिनेशन गुड एंड एक्स एंड वाई का बनाया है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग फर्स्ट कॉम्बिनेशन को ए कॉम्बिनेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे गुड एक्स 1 है एंड गुड वाई 15 है। जब हमने सेकेंड कॉम्बिनेशन देखा तो यहाँ पे हमने गुड एक्स की 1 वैल्यू बढ़ा दी, यानी हमने जब 2 करा तो हमने जो हमारी गुड वाई है उसकी मीन्स हम लोगों ने 5 कमोडिटीज़ को कम कर दिया है। तो यहाँ पे एक गुड एक्स की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमने फॉरगो किया है 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई को। ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सी में हमने क्या देखा कि अगेन द गुड एक्स की एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए 4 को गुड वाई के 4 कमोडिटीज को फॉरगो किया गया है। डी में हमने कॉम्बिनेशन में देखा अगेन इन ऑर्डर टू इंक्रीज 1 मोर कमोडिटी ऑफ गुड एक्स 3 commodities of good y have been foregone in the good e in the combination e. What we see, in order to increase 1 more additional quantity of good x means 2 commodities of good y have been foregone. Now, this is the graphical representation of or the diagrammatic presentation of indifference curve. Just look at it closely. What here we see, the means what we are seeing here, that the this indifference curve it slopes downward, means ये downward sloping है. Why is it sloping downward? हमने देखा है व्हाट वी आर सीइंग कि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस इंडिफरेंस कर्व इट इज हैविंग अ नेगेटिव स्लोप। अब ये क्या इम्प्लाई करता है, दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर. It is only then that the satisfaction level would remain constant at different point of the IC. यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने देखा, नेगेटिव स्लोप देखा लेफ्ट टू राइट, ये इसलिए है क्योंकि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी हमारे कंज्यूमर को अगली दूसरी कमोडिटी को फॉरगो करना पड़ा था, यानी कि उसको छोड़ना पड़ा था. इसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं कि मीन्स कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से ही क्या होता है कि ये जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है. मीन्स कि अगर हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि मोर ऑफ अ गुड इट ऑलवेज लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मोर ऑफ वन गुड इट शुड बी कंबाइंड विथ लेस ऑफ द अदर, यानी कि अगर हम किसी एक कमोडिटी को बढ़ा रहे हैं तो हम अगली कमोडिटी को घटा रहे हैं. तो उससे क्या होता है कि सो दैट द सेटिस्फैक्शन जो लेवल होता है इट रिमेन्स, ये हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है. सेकेंड थिंग जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं कि ये अपने दिस इंडिफरेंस कर्व इट इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, ये अपने ओरिजिन से कॉन्वेक्स है. वाई इज इट कॉन्वेक्स? बिकॉज इसका मतलब ये है कि द आईसी स्लोप इट टेंड्स टू डिक्लाइन. मीन्स कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ आईसी स्लोप में बढ़ते हैं वो डिक्लाइन करता है. अब इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि मीन्स इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर. आई शोड यू इन द टेबल ऑल्सो. जैसे कि जैसे जैसे एक गुड को एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहा है, अगली गुड को क्या कर रहा है, वो जो मीन्स की जो उसकी इंटेंसिटी या डिजायर है जिसकी कमोडिटी को बढ़ा रहा है वो घटती जा रही है. ठीक है. देन थर्ड थिंग दैट वी आर सीइंग इन दिस वन इज कि हायर आईसी इट शोज मीन्स हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को. मीन्स कि इस यहाँ पे हम इंडिफरेंस मैप की बात कर रहे हैं या अ सेट ऑफ डिफरेंस कर्व्स वन ओवर द अदर की बात कर रहे हैं. इट आई विल शो यू दैट ऑल्सो. फोर्थ थिंग हमने क्या देखा है कि जो आईसी कर्व्स हम इंडिफरेंस मैप में देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करते हैं. वाई डू नॉट दे इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज
means कि they are equal in terms of the level of satisfaction. Then what we see that the IC, it does not touch x axis or y axis. Why it is not touching x axis or y axis? Because means जो IC एनालिसिस होती है वो कंसिडर करती है कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स को. अगर वो y एक्सिस को टच करती है तो इट वुड मीन दैट द कंजम्पशन ऑफ, अगर वो y एक्सिस को टच करेगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कंजम्पशन ऑफ गुड x है वो 0 है, और अगर वो x एक्सिस को टच करेगी तो उसका मतलब होगा कि जो कंजम्पशन ऑफ गुड y है वो 0 है. This is all. That means IC slopes downward. I explained to you why it is convex to its origin. That also we saw. Then higher level of satisfaction. IC shows higher level of satisfaction. Then these ICs, they do not cross or intersect each other, and these ICs, they do not touch x axis or y axis. I explained you why they do not touch x axis or y axis, because अगर वो x axis को touch करता है तो that means y का 0 है consumption, y को touch करता है तो x का consumption 0 है. अब this is indifference map. Indifference map क्या शो करता है? Different level of utility which is derived by the consumer. इसको हम family of indifference curves भी बोलते हैं. अब ये क्या है? It is a set of ICs in a graph. It is called indifference map. अभी मैंने कहा कि ये एक दूसरे को intersect नहीं करते हैं. See, they never intersect each other. Then we will be talking about कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमल चॉइस. तो जब मैं ऑप्टिमल चॉइस की या की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कंज्यूमर है वो फाइनली कहाँ पे सेटल होता है, कि मीन्स वेयर ऑन अ पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ बजट लाइन जहाँ पे इक्वल होता है टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. जहाँ पे हमारा बजट लाइन का कर्व जो होता है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के इक्वल होता है, वहाँ उस एंड जो बजट लाइन होती है वो टैंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व के. तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल चॉइस, वी गेट अ ऑप्टिमल चॉइस. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सेटल होता है एक पॉइंट पे जिसको कि हम ओ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एट दैट पॉइंट द बजट लाइन इट इज टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व. अब ये हम देखते हैं कि वाई इट इज सो एंड वाई द कंज्यूमर विल नॉट सेटल एट एनी पॉइंट, एनी अदर पॉइंट. तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मली प्रिज्यूम किया जाता है कि द कंज्यूमर जो है हमारा वो लॉजिकल इंडिविजुअल है, और जो भी बंडल्स उसके पास हैं ऑब्टेनेबल बंडल्स हैं, मीन्स विच आर ऑब्टेनेबल टू देम, the consumer always picks the one which gives them utmost contentment. So this is means a detailed and elucidate information about the concept. Then we can say that we can consider some points. Likewise a point B we can consider, and what we see that both the point lies on same on the budget line, that is O. I will be showing you the graph after explaining. Then what will happen? These both point A and B, they will lie on a lower indifference curve as that of O. As means उससे लोअर पे वो O पॉइंट से लोअर पे लाई करते हैं. सेकेंड what we see कि डाउनवर्ड indifference curve ये हमेशा डेफिनेटली लाई बिलो द इंडिफरेंस कर्व, वो इंडिफरेंस कर्व के बिलो ही लाई करेगा. और जो हमने पहले ही देख लिया है कि द कंज्यूमर ही हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दैट द कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स मोर एंड द ऑप्टिमल चॉइस कैन नेवर बी एट पॉइंट ए और पॉइंट बी. सो what now let's means define it. means कि consumer equilibrium की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे optimal choice of the consumer को रेफर करता है. ये तब मिलता है जबकि when he maximizes his, यानी कि जब हमारा consumer अपनी satisfaction को maximize करता है in terms of indifference curve analysis.
तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है ही रीचेस हिज ऑप्टिमम चॉइस व्हेन टू कंडीशंस आर satisfied. What are the condition? That is MRS XY is equal to PX upon PY. यहाँ पे जो हमारा MRS XY है ये स्लोप है, इट इज स्लोप ऑफ IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, और PX PY क्या है, ये प्राइस का स्लोप है, मीन्स लाइन बजट लाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है और जो हमारा प्राइस लाइन है ये दोनों क्या होते हैं, दे आर टैंजेंट टू ईच अदर and the IC is convex at the point of equilibrium. So that was all for today. In my next video, as I had covered up the budget line and budget line and graphical representation of budget, in my next video I will be discussing with you people shift in budget line. Thanks for watching, and if you like my videos, do subscribe to my channel.